Children, in the last lecture, we had learned about banking. We had seen the different functions of banks and how we can avail banking services for running our business activities smoothly. And what are the different business banking services that are available to us, which can make our financial transactions very simple, very easy, very convenient. So let's now study about e-banking. E-banking, which we can call as electronic banking or online banking or virtual banking, it is quite a familiar term these days. You all must be aware how we make use of this e-banking facility. So let's discuss more about this e-banking. Okay, e-banking is what? If you define it, an electronic payment system that enables the customer of a bank or a financial institution to make financial transactions online via the internet. So this is a facility, like everybody these days uses electronic devices. You use laptop, mobile phone, your PC, or very the most common thing is your mobile phone. So technology is expanding so fast that it has made so many services for which uh, our physical presence was uh, I mean required. Now everything is available on our fingertips. Using our electronic devices, we can carry out all those functions electronically or through online mode. We should have an electronic device, we should have a computer system or a mobile phone or a laptop, and we should have internet facility, and we can have access to any of the banks these days, because most of the banks, they have gone digital. They have their websites, they have their apps which can conveniently be used. So all the functions for which you had to physically go to the bank, you if you had to withdraw the money, or if you had to deposit the money, all these functions can be performed digitally these days. E-banking. Now let's see the benefits of e-banking. How this e-banking facility is beneficial for us. Why should we opt for this e-banking facility? When we open an account in a bank, we should opt for e-banking facility. How can it benefit us? The first benefit is round the clock service. We know that every bank, every branch of the bank, it has a limited time, it has opening time, closing time. So if we have to avail banking facility physically, then we have to adhere to their timings. उतने टाइम में ही जाके जो उनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग का टाइम है, जो उनका ऑफिशियल टाइमिंग है बैंक का, उसी टाइम में आप जाकर काम कर सकते हैं. And then when you go during the mid of the day, there's often lunch time. So फिज़िकली काम करने में हमें ये सारी दिक्कतें आती थी. ई बैंकिंग में हमें क्या इसमें आसानी मिल रही है कि दिस सर्विस इज़ अवेलेबल राउंड द क्लॉक, बिकॉज़ ये ऐप के थ्रू डिजिटली होता है. इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई वहाँ बैंक एम्प्लॉयज़ की फ़िज़िकल प्रेजेंस हो. दैट इज़ नॉट नेसेसरी. एवरीथिंग इज़ recorded electronically. So we can avail this service, we can avail this facility round the clock, any time of the day. We can have access to this e-banking facility. So that way it is very convenient, it saves our time, and we can perform these banking functions as per our convenience. Everywhere service, like हमें पहले बैंक को देखना पड़ता था कि जिस बैंक में हमारा अकाउंट है, अगर हम किसी दूसरे सिटी जाते हैं या कहीं दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वी हैड टू सी वे वी कैन फाइंड the branch of the bank in which we have our account. But now this using e-banking facility, this can be utilized anywhere and everywhere. Wherever you go, you have it in your hand. You are carrying your mobile phone, and the app of the bank is in your mobile phone. So you can make transactions, you can transfer the money, you can receive money
anywhere, anytime. Next is saving time and cost. This obviously, when the thing is so convenient, it is just at our fingertip, so it is obviously saving our time and traveling cost also for making our physical presence to the bank branch. Next is security and financial discipline. We know security function of the bank. We have already studied that when we keep our money in the bank, we find it quite secure rather than carrying the cash. When you carry the cash or when you have to transfer cash to somebody, आप cash लेकर किसी के पास पहुंचाने में, that is quite like a risky game. एक थेफ्ट का और एक सबका एक रिस्क बना रहता है. बट व्हेन यू ट्रांसफ़र द मनी थ्रू ई बैंकिंग, दिस इज़ वेरी सेफ. nobody is involved in that. आप सिर्फ कर रहे हैं and that amount directly goes into the account of the receiver. So it's absolutely secure. And financial discipline, like each and every transaction is being recorded. On demand you can have a statement of your transactions. आपके account में कितना पैसा आया, कहाँ से आया, आपने कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र किया है. All that is digitally recorded and you can view it anytime when you demand for it. Customer satisfaction, when banking becomes so easy, so convenient and so secure for us, so customer satisfaction is quite obvious. Now what are the benefits which we have seen so far? These were the benefits to the customer. As a customer हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं ई बैंकिंग के. Let's now see how ई बैंकिंग has made it convenient for the banks. The first one is competitive advantage. The more services a bank provides to the customers online, it is going to have a better competitive edge over other competitor banks which are operating in the market. किसी बैंक जो जितनी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, आप देखते होंगे आजकल जितने प्राइवेट बैंक्स हैं, ICICI, HDFC, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स लाने की कोशिश करते हैं. दे वुड इवन बी गिविंग यू डिस्काउंट्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, सो मेनी फैसिलिटीज़ दे प्रोवाइड टू देयर customers so that they can have a better customer base rather than their competitors. तो इस तरह क्या होता है कि बैंक इस फैसिलिटी को यूज़ करके और अपने को और ज़्यादा डिजिटली एडवांस करके अपने कॉम्पिटिटर से बेटर जब परफॉर्मेंस कस्टमर को देगा तो ऑब्वियसली इट विल हैव मोर कस्टमर्स. रिड्यूस्ड वर्कलोड ऑन द ब्रांचेस. पहले हम देखते थे बैंक में लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं, लोग डिपॉजिट करने के लिए या पैसा विड्रॉ करने के लिए, DD बनवाने के लिए, और जो भी बैंकिंग फैसिलिटीज़, बैंकिंग सर्विसेज जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है. आपका रेंट आपको जमा करना है, ट्रांसफ़र करना है, सैलरी विड्रॉ करनी है, जो भी आप जो बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, तो उसके लिए व्हेन यू हैड टू विजिट योर बैंक फिजिकली, दे वुड be long queues. People had to wait for very long hours to get their turn. तो अब क्या होता है कि अब जब ये सारी चीज़ें लोग बिना बैंक जाए अपने मोबाइल के थ्रू, अपने कंप्यूटर के थ्रू ईज़िली जब ये सारे फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं, तो बैंक में जो वर्कलोड है वहाँ के एम्प्लॉयज़ पर वो ऑब्वियसली कम हो गया है. बिकॉज़ अब सब कुछ डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली सारे अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक. जैसे लोग यूज़ कर रहे हैं ई बैंकिंग को, तो उनका वो सारा जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है. तो फिज़िकली वहाँ के एम्प्लॉयज़ को हर चीज़ का डेटा एंट्री और वो करना ज़रूरी नहीं है, तो उनका वर्कलोड भी कम हो गया है. नेक्स्ट इज़ अनलिमिटेड नेटवर्क. नाउ क्योंकि अब ये एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, तो उसमें क्या है कि पहले नंबर ऑफ़ ब्रांचेस, बैंक की जितनी ब्रांचेस होती थी वो उतना ही उनका नेटवर्क होता था, उतना ही उनका कस्टमर बेस रहता था. क्योंकि जो अगर किसी एरिया में बैंक नहीं है और दूर है किसी आपके लोकेलिटी से, तो आप यही प्रेफर करेंगे कि आपके जो नियर बाई बैंक हो आप वहीं पर जाकर अपना अकाउंट खोलें, ताकि आपको बार बार जब उसको यूज़ करना है बैंकिंग फैसिलिटी को, तो आपके लिए वो इनकन्वीनियंट ना हो. बट अब क्या है, अब हमें
फिज़िकल अगर प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, हम सब कुछ अपने फिंगर टिप्स पे ही सारे हमारे काम हो जा रहे हैं, तो अब नेटवर्क कहीं भी, आप कहीं पर भी रहते हो और किसी बैंक, जो भी आपकी चॉइस का बैंक हो, वहाँ आप अपना अकाउंट खोल कर अब वो सारे फंक्शन आराम से यूज़ कर सकते हैं। बैंक की ऐप के थ्रू कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई हैं। तो ऑब्वियसली नेटवर्क इज़ एक्सपेंडिंग। ओके, नेक्स्ट टर्म इज़ डिजिटल पेमेंट्स। आप आजकल देख रहे होंगे, यू मेक आई मीन ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स, दीज थिंग्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। हम कुछ भी शॉपिंग आजकल कर रहे हैं, यू परचेज ग्रॉसरी, यू परचेज clothes, you purchase electronic goods, or you purchase any of your household item or any of your I mean personal thing, you go online। सब चीज़ की हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन उसमें मनी ट्रांसफ़र करते हैं। हमारा जिस अकाउंट में जिस बैंक में हमारा अकाउंट होता है, वहाँ से अगर हमें ये फैसिलिटी मिली हुई होती है नेट बैंकिंग की, तो हम सारा मनी ट्रांसफ़र जो है वो ऑनलाइन ही करते हैं। और इफ़ वी हैव अ क्रेडिट कार्ड और अ डेबिट कार्ड, देन ऑल्सो वी कैन make payment digitally। So this is a very I mean familiar term these days, digital payment। हम सब लोग यूज़ कर रहे हैं इसे। So let's see how will we define it। Digital payment, it is a way of payment which is made through digital modes। In digital payments, payer and payee both use digital modes to send and receive money। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। अब इसमें क्या है, नेसेसरी कंडीशन है दैट द मनी, इफ़ यू ट्रांसफरिंग मनी टू समबडी, दैट पर्सन शुड ऑल्सो हैव दिस फैसिलिटी। अब आप कोई किसी ऐसे, सपोज़ आप अपनी मेट को, हाउस मेट जो आपकी है, उसको अगर मनी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो, उसके पास अगर वो फैसिलिटी नहीं है, उसने अपना बैंक में अकाउंट नहीं कर रखा है, या उसके पास, और आजकल हमें बहुत सारे इस तरह के जो जैसे लाइक पेटीएम है, गूगल पे, अमेज़न पे, सो मैनी थिंग्स, अगर ये किसी के पास नहीं है तो आप कहाँ करेंगे, वो होना ज़रूरी है। लाइक बोथ द पेयर एंड द पेई, दे बोथ शुड बी यूजिंग डिजिटल मोड्स to send the money and to receive money as well। Now types of digital payments, electronic funds transfer system, that is one। इसमें क्या करते हैं हम, जिसको हम कहते हैं EFTS, electronic funds transfer system। How do we do this? For this we should be having, इसमें आपको क्या है कि इस लाइक अंडर दिस सिस्टम अ बैंक ट्रांसफर्स salaries and wages directly from the company's accounts to the accounts of the employees of the company। Like we had studied that one of the banking services is disbursement of salaries also। Some of the business enterprises, they have an agreement with the bank, they have such a system, such a setting with the bank that the salaries of the employees can directly be paid from the bank। एम्प्लॉइज़ को अपने लाइक जो ओनर है बिज़नेस का, उनके पास जाके सैलरी कलेक्ट करने के बजाय दे कैन कलेक्ट इट फ्रॉम द कंसर्न बैंक डायरेक्टली। तो अब इसमें क्या करते हैं कि बैंक्स जो है, दे कैन लाइक दे हैव मेड सच अ सेटिंग दैट एवरी मंथ आफ्टर द completion of the month, all the employees who are there on roll, they can have their accounts रिसीव द सैलरी ऑटोमेटिकली। बैंक में क्या होगा कि जो किसी भी बिजनेस फर्म, बिजनेस एंटरप्राइज का अकाउंट है, उससे ऑटोमेटिकली वहाँ से अमाउंट जो है वहाँ से डेबिट होकर और वो सारे एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो वी कॉल दिस सिस्टम एज इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र सिस्टम। इसमें लाइक आपका अकाउंट में पैसा पहुंच भी जाएगा और वहाँ से निकल भी जाएगा। अगर अब किसी एम्प्लॉई ने कुछ अपने अकाउंट में ऐसी सेटिंग की हुई है कि हैज़ टू पे हाउस रेंट, और ही हैज़ टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी और एनी सच थिंग, सो दैट अमाउंट कैन डायरेक्टली बी ट्रांसफर्ड फॉर दैट पर्पस ऑल्सो। नेक्स्ट इज़ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप सब लोगों ने सुना होगा कैसे हम यूज़ करते हैं। डेबिट कार्ड में यू शुड बी हैविंग अकाउंट in a particular bank, and the bank can provide you a plastic card। It can be issued to its customers, and
इसके थ्रू क्या करेंगे कि आपके अकाउंट में जो आपने डिपॉज़िट किया हुआ है, जो बैलेंस है, आप कहीं पे भी कुछ शॉपिंग करते हैं तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रहता है, एक प्लास्टिक कार्ड जिसमें सारी आपकी डिटेल्स, आपके अकाउंट डिटेल्स उसमें रहती हैं, उसके थ्रू आप जब पेमेंट करते हैं, आई मीन आपने देखा होगा कैसे उसको स्वैप करते हैं कार्ड को। कहीं पर भी आप किसी मॉल में जाते हैं, आजकल तो इवन छोटे ग्रॉसरी स्टोर्स पर भी इस सब की फैसिलिटी है, कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर लेते हैं। तो आप वो कार्ड कैश नहीं आपको वहाँ पर देना है, जो भी पेमेंट आपको करना है वो कार्ड के थ्रू आपका कार्ड से ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा सेलर को, जिससे भी आपने सामान ख़रीदा है उसका जो भी अमाउंट है वो वहाँ पर एंटर करेंगे। आपका उसमें एक कोड रहता है, वो आप उसमें फीड करेंगे और ऑटोमेटिकली आपका वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके अकाउंट से सेलर के पास। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं? डेबिट कार्ड में तो आपके अकाउंट में उतना पैसा है तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में ये फैसिलिटी रहती है कि अगर आपका कहीं पर अकाउंट है और बैंक के साथ आपका एक लाइक बैंक हैज़ दैट मच ऑफ ट्रस्ट, तो क्या करेंगे कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो भी एक सर्टेन लिमिट तक आप कहीं ये इस तरह का डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। वो पेमेंट आप करेंगे, हर बैंक की हर इसके लिए कस्टमर के लिए एक अलग लिमिट होती है, उनकी फिनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, बैंक बैलेंस के हिसाब से बैंक जो है वो एक अमाउंट असाइन करता है कि टू अ सर्टेन लिमिट यू कैन मेक परचेजेस, यू कैन मेक डिजिटल आई मीन पेमेंट्स एंड देन यू कैन पे दैट मनी लेटर टू द बैंक। जो बैंक ने आपको पैसा दे दिया खर्च करने के लिए, वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्च कर लेंगे और अपने अकाउंट में वो अमाउंट बाद में डिपॉजिट कर सकते हैं। उसका एक टाइम लिमिट देता है बैंक कि उस टाइम लिमिट तक आपको वो अमाउंट बैंक को वापस करना है। नेक्स्ट इज़ मोबाइल बैंकिंग। अंडर दिस सिस्टम फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट थ्रू अ स्मार्टफोन। मोबाइल जो हम लोग सब यूज़ करते हैं आजकल, उसके थ्रू हम मोबाइल बैंकिंग कैसे करते हैं? मोबाइल बैंकिंग कैन बी डन थ्रू SMS apps. Customers can download these apps to carry out banking transactions at a click of a button. उस मोबाइल में ही हम लोग जिस बैंक में भी हमारा अकाउंट है, आपका अकाउंट है SBI में है, यूनियन बैंक में है, इन सब की ऐप्स हैं जिसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं और आपको अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना है या जो भी इस तरह की ट्रांजैक्शंस आपको करने हैं वो आप उस ऐप के थ्रू डायरेक्टली कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, इट सेव्स योर टाइम एंड इट इज़ हाईली सिक्योर। नेक्स्ट इज़ e-wallet or digital wallet. As I told you, so many these digital wallets are available. Paytm is there, Google Pay, Amazon Pay, so many more are there. तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम अपने अकाउंट से, जिस बैंक में हमारा अकाउंट है उसमें जो अमाउंट होता है वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। Paytm आई होप एवरी वन ऑफ यू मस्ट बी यूजिंग। उसमें हम जो हमारा ई-वॉलेट है, पेटीएम अगर हम यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम का एक वॉलेट रहेगा, वो अमाउंट हम वहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब जैसे आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो तो क्या करते हो? यू कैरी योर वॉलेट इन विच यू हैव टू कीप योर मनी सो दैट यू कैन पे इट। जो भी आपने कुछ शॉपिंग की है वहाँ पर जो भी आपको पे करना होता है वो वॉलेट में से आप कैश निकाल के पे करते हैं। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ वॉलेट विच वी यूज़ डिजिटली। आपको लाइक फिज़िकल वहाँ पर मनी नहीं होती है, बट वो इलेक्ट्रॉनिक हमारा वहाँ पर डिपॉजिट रहता है। सो यू कैन पे द मनी फॉर ऑल योर परचेजेस डायरेक्टली फ्रॉम योर ई-वॉलेट और डिजिटल वॉलेट। आपने देखा होगा पेटीएम को, इस सब को हम कैसे यूज़ करते हैं। उसका एक क्यू कोड होता है, QR, वहाँ पर आप उसको मैच कराते हैं और उसके थ्रू आप जो भी अमाउंट वहाँ पर आप उसमें डालते हैं वो ऑटोमेटिक विदिन सेकेंड्स वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। Next type of digital payment is net banking. Under net banking, customers are provided secured login and passwords. Net banking में क्या है कि बैंक का में जो हमारा अकाउंट है वहाँ पर बैंक हमें एक प्रोवाइड करेगा लॉगिन ID एंड पासवर्ड, और कहीं आपको मनी ट्रांसफ़र करना है तो आप अपना ये लॉगिन ID एंड पासवर्ड डाल के डायरेक्टली उसके थ्रू सारी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, सच एज़ अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी, चेक बुक रिक्वेस्ट, फंड ट्रांसफ़र,
whatever, जो भी आप फिज़िकली बैंक में जाके जो चीज़ें आप करते हैं, अपनी पासबुक को अपडेट कराते हैं, जो आपको कहीं पैसा ट्रांसफ़र करना है, जो जैसे चेक वगैरह के थ्रू आप करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी नेट बैंकिंग के थ्रू हो जाती हैं. So we see that this technology has, I mean, bring a revolution in our life in every field, and so has this bank service become so convenient, so easy, and it has considerably saved our time, our energy, एंड कॉस्ट ऑल्सो, जो हमें ट्रैवलिंग में और बैंक तक जाने में आने में जो खर्च करना पड़ता था, वो भी हमारा अमाउंट सेव हो रहा है. एंड टाइम हमारा इतना ज़्यादा सेव हो रहा है कि हम बैंक में जाके लाइंस में लगकर जो काम करते थे वो अब हमारे विद इन सेकेंड्स सिर्फ फिंगर टिप्स पर आ गए हैं वो चीज़ें. सो दिस बैंकिंग वॉज अ वेरी इम्पॉर्टेंट सर्विस which can make your business functions very convenient and very time effective. So this is all for today. We'll be studying another thing, that is another business service, that is insurance, on the next term. Thank you, children.